سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فلور ملز ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد ڈویژن بھر میں ملیں بند، مارکیٹ سے سستا آٹا ختم ہو گیا، غریب شہری اوپن مارکیٹ سے مجبور مہنگا آٹا خریدنے لگا۔ محکمہ خوراک کا متبادل فلور مل سے فیصل آباد میں آٹے کی سپلائی کا دعویٰ۔ ملک میں بجلی بحران سنگین، بجلی کی کم کھپت کی قربانی کے لیے تاجر ہو جائیں تیار۔ حکومت کا ملک بھر میں کاروباری اوقات کار رات 8:30 تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تاجر برادری سے مشاورت کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ فیصل آباد کے تاجر رہنماؤں نے حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں بجلی بحران سنگین، بجلی کی کم کھپت کی قربانی کے لیے تاجر ہو جائیں تیار۔ حکومت کا ملک بھر میں کاروباری اوقات کا رات 8:30 تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تاجر برادری سے مشاورت کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ فیصل آباد کے تاجر رہنماؤں نے حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کر دیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں فلور ملز ایسوسی ایشن کی کال پر فیصل آباد ڈویژن بھر میں ملیں بند، مارکیٹ سے سستا آٹا ختم ہو گیا۔ غریب شہری اوپن مارکیٹ سے مجبوراً مہنگا آٹا خریدنے لگے۔ محکمہ خوراک کا متبادل فلور مل سے فیصل آباد میں آٹے کی سپلائی کا دعویٰ۔ فیصل آبادیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہونے لگا۔ فلور ملز مالکان نے ملیں بند کر دیں، دکانوں سے آٹا غائب ہو گیا، دکانوں پر آئے صارفین خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ خوراک نے متبادل فلور ملز کے ذریعے آٹا فراہم کرنے کا دعویٰ کیا، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اسلام نگر میں سستا آٹا نہیں مل رہا۔ سمن آباد، وارث پورہ، رضا آباد، غلام محمد آباد سمیت شہر کے متعدد علاقوں میں آٹے کی سپلائی نہیں ہو سکی۔ اسلام نگر کے دکانداروں نے موقف اختیار کیا کہ مین بازار میں 3 روز سے آٹے کی سپلائی نہیں ہوئی۔ ابھی تک آٹے کی عدم موجودگی ہے، جو حکومت نے کہا تھا وہ ابھی تک ہوا نہیں، لیکن جو سابقہ حکومت یہ جو کچھ کر گئی ہے نا مہنگائی کے خلاف، ہمیں امید ہے یہ موجودہ حکومت اس کے اوپر قابو پا لے گی۔ اس بازار میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی شاپ پہ آپ کو نہیں ملے گا آٹا، اس ٹائم موجود ہی نہیں ہے۔ جو پہلے جب مل رہا تھا لیکن تب لوگ لے رہے تھے، لیکن اب مل ہی نہیں رہا۔ چنیوٹ کی تینوں فلور ملز مسلم فلور، حسن اور لگاری فلور مل آج ہڑتال کے باعث بند رہیں۔ ہڑتال کے باعث ضلع میں آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلور ملز مالکان اور ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور محکمہ خوراک کی بیجا کارروائیوں کے خلاف ہڑتال کی۔ کل جمعرات سے سرکاری آٹے کی سپلائی مکمل بند ہوگی۔ اگر حکومت کو سرکاری آٹا چاہیے تو مل گیٹ سے آٹا لے کر خود سپلائی کریں۔ ادھر جھنگ میں بھی فلور ملز مالکان نے پسائی کا عمل روک دیا۔ فلور ملز مالکان نے محکمہ خوراک کی ملز کے خلاف کارروائیوں بارے ہڑتال کی۔ پسائی کا عمل رکنے سے مارکیٹ میں سپلائی متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ملز مالکان کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مطالبات نہ مانیں گے تو احتجاج کا دائرہ کار ملک بھر میں پھیلائیں گے۔ فلور مل ایسوسی ایشن کی حکومت اور انتظامیہ کو ڈیڈ لائن دے دی۔ چیئرمین ایسوسی ایشن چودھری شفیق کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو کوئی مل نہیں چلے گی۔ حکومت کی ناقص پالیسیاں فلور ملز مالکان پر بھاری۔ فیصل آباد کے فلور ملز مالکان نے چیمبر آف سمال ٹریڈ اینڈ سمال انڈسٹری میں ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ شہر بھر سے فلور ملز مالکان نے شرکت کی۔ چیئرمین فیصل آباد فلور ملز شفیق انجم کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کی جانب سے فلور ملز مالکان کو بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہم ہڑتال نہیں چاہتے، مگر ناروا سلوک دیکھ کر آج سے ہڑتال کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے جائز مطالبے نہ مانیں گے تو یہ ہڑتال جو آج پنجاب میں جاری ہے، یہ انشاءاللہ کل پرسوں تک پاکستان پورے میں پھیل جائے گی، اور اس نتائج کے ذمہ دار اس ملک کی بیوروکریسی ہوگی جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے۔ پریس کانفرنس میں فلور ملز مالکان نے بیوروکریسی پر بھی مبینہ الزامات لگائے کہ بیوروکریسی کی جانب سے فلور ملز مالکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ فلور ملز مالکان پر پرچے درج کروا کر حوالات میں بند کیا جا رہا ہے۔ اگر شام تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پاکستان بھر سے فلور ملز مالکان ہڑتال میں شریک ہوں گے۔ معزز مالکان پر FIR دی گئیں، ان کی ملوں کو سیل کیا گیا، اور کس بات پہ کہ مل میں گندم کیوں ہے؟ بھائی فلور مل میں گندم نہیں ہوگی تو کیا وہاں پہ چاول ہوں گے، دالیں ہوں گی، چینی ہوگی، گھی ہوگا، کیا ہوگا؟ فلور مل کا خام مال گندم ہے، وہاں گندم ہی ہوگی۔ اور اگر آپ گندم رکھنے پہ
मिलों को सील करेंगे तो भाई ये पड़ी हैं चाबियां, हमने खुद ही बंद कर दी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने हुकूमत को 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन में मुतालबात पूरे न होने की सूरत में पाकिस्तान भर से फ्लोर मिल्स मालिकान और आटा चक्की मालिकान को भी आटे की सप्लाई बंद करके हड़ताल में शामिल होने की कॉल दी है, जिससे मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि समुद्री की कमाल फ्लोर मिल ने आटा केपी स्मगल करने की कोशिश की। स्मगलिंग के लिए आटे के वंडा के नाम पर गुड्स कंपनी में बुकिंग कराई। इस्लाम मिलने पर जिला इंतजामिया और महकमा खुराक ने कार्रवाई की। आटे के 500 थैले जब्त कर लिए गए और फ्लोर मिल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिला इंतजामिया और महकमा खुराक की कमाल फ्लोर मिल समुद्री के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से मौकिफ सामने आ गया। कमाल फ्लोर मिल समुद्री की जानिब से सस्ते आटे के 500 थैले पेशावर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कमाल फ्लोर मिल्स इंतजामिया ने सस्ता आटा मुकर्ररा शॉप्स पर भिजवाने की बजाय स्मगल करने की कोशिश की। आटे की स्मगलिंग के लिए आटे की वनडे के नाम पर गुड्स कंपनी में बुकिंग कराई। तहसील इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए सब्सिडी वाले आटे की पेशावर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी और सब्सिडाइज आटा फ्लोर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा दिया। मौजूदा तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं रहा, फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। एफका के ज़ेरे एहतमाम जिला काउंसिल चौक में एहतजाज और नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से सरकारी मुलाजमीन ने जिला काउंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करने की अपील की। महंगाई के खिलाफ हम आज एहतजाज कर रहे हैं। हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है उसके मुताबिक हमारे मुतालबा पूरे किए जाएं। सबसे पहले स्केल वाइज किए जाएं और हाउस एंड नए स्केलों के मुताबिक दिया है और कन्वेंस लॉ दिया जाए, मेडिकल लॉ दिया जाए और हमारा जो 15% डिस्पेरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन मरकज ने कर दिया, अभी सफाई हुकूमत ने नहीं किया। एहतजाजी मुजाहरे में एपका उहदेदारान चौधरी मकसूद अहमद गुजर, अमानुल्लाह यासीन, मोहम्मद लतीफ गुल, मिर्जा कफील कैसर और राना साजिद मौजूद थे। मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुलाजमीन को भी डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। उन्होंने दीगर अलाउंसेज में इजाफे का मुतालबा भी किया। हमारे मुतालबा ये है कि जिस तरह दूसरे सूबों को दिया गया 15% हमें भी दिया जाए और हमारा जो हाउस रेंट है वो नए स्केल के मुताबिक दिया जाए। मेडिकल भी हमें नए दिया जाए क्योंकि पेट्रोल आए दिन बढ़ रहा है जिसकी वजह से महंगाई बहुत हो रही है। हमारी हर चीज़ महंगी हो गई, हमारी वही पुरानी तनख्वाहें। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की अदम मंजूरी पर हफ्तावार एहतजाज पर मजबूर होंगे और फिर भी मुतालबात मंजूर न हुए तो कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं फैसलाबाद में नहरी पानी की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शोबा ज़राअत से वाबस्ता काश्तकारों की परेशानी बढ़ गई। कई माहरीन ने हुकूमत और किसानों को मौजूदा ज़राई सूरत हाल से खबरदार कर दिया। शोबा एग्रानमी के डॉक्टर रफीक कालू का कहना था कि पानी की कमी के फैसलों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इस सिलसिले में किसानों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। अभी काटन और मकई की फसल शदीद मुतासिर हो रही है, इसका हल किया जा सकता है। किसानों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर पिछले 50 साल से तकरीबन 22 से 24% ज़्यादा हो चुका है। बारिशें नहीं हो रही हैं, नतीजतन हमारी फसलों की जो बढ़ोतरी है वो तकरीबन रुक चुकी है। डॉक्टर रफीक कालू का कहना था कि इन दिनों में ज़मीन की नमी बचाना ज़रूरी है। मखलूत फसलें काश्त करने से भी बेहतरी आ सकती है। कम पानी वाली फसलें काश्त की जा सकती हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक ज़मीन के हर टुकड़े को नहरी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इसके लिए ट्यूबवेल के पानी के साथ हल्का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ट्रांसलोकेशन होती है फोटोसिंथेसिस की कम होने की वजह से ज़्यादातर हमारा जो फ्रूट है उसका साइज़ नॉर्मल से कम है। सिट्रस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा लीमू है उसका साइज़ बहुत छोटा रह गया है। और अव्वल तो ये बात आप कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ लीमू पर प्लांट ही थोड़े हैं। ज़राई माहिरीन ने अभी मज़ीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। मौजूदा सूरत हाल में फसलों की बेहतर पैदावार हासिल करना किसानों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ो और आपको बताएं टोबा के किसान खाद की अदम दस्तियाबी और नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रेलवे फाटक को ट्रैफिक के लिए बंद करके खूब नारेबाजी भी की। टोबा टेक सिंह में किसानों ने नहरी पानी की बंदिश और खाद की अदम दस्तियाबी के खिलाफ शहबाज चौक में एहतजाज किया। रेलवे फाटक बंद कर दिया, ट्रैफिक रोक दी। मुजाहिरीन ने महकमा नहार झंग के एक्सीडेंट के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एक्सीडेंट की गफलत के बायस नहरी पानी से महरूम हो गए हैं। ज़राअत जेहड़ी है ना इहदे वास्ते पानी जेहड़ा है ना सब तो पहले पानी आ, नहरी पानी। साडा जेहड़ा इलाका आ इत्थे ज़मीनी पानी कड़वा आ, नहरी पानी जेहड़ा आ इतना थोड़ा हुंदा है कि साडियां फसलां जेहड़ियां उन्हां नूं सैराब नहीं करदा।
मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि बासर अफराद को नहरी पानी की बिला तात्तुल फराहमी जारी है, जबकि किसानों को नहरी पानी नहीं मिल रहा। फसलें मुतासर हो रही हैं और जानवर भी पानी को तरस रहे हैं। खाद नहीं सानू मिल रही, सानू दूसरा कोई शय नहीं इत्थे मिल रही। जे मिलदी आ तो मसलन खाद का रेट हैगा यूरिया का 1750, 34-3500 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हम गए SDO के पास, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੇਕੂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਕੂ ਮਾਈਨਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ नहीं पानी चाहिए। किसानों का कहना था कि खाद की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुकूमत नहरी पानी के मसाइल और खाद की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में अनार के बागात काश्त करने वालों के लिए बुरी खबर। गर्मी की शिद्दत और कंकर बीमारी की वजह से अनार का फल फटने लगा। माहिर फ्रूट अयूब रिसर्च डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना है कि इस बार पानी की कमी के बायस शदीद नुकसान हो रहा है। अनार की फसल खासी कम हुई है, वैरायटियां बेहतर नताइज नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि इस वक्त पोटाशियम और बोरान का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। अनार का जो फ्रूट है उसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अनार का जो एरिया है वो डे बाई डे जो है वो कम होता जा रहा है। तहसील लियाकतपुर में अगर बात करें, अलीपुर में बात करें तो वो जो एरिया है काफ़ी कम हो गया है और लोग जो हैं वो अपने बागात को अपरूट करके और जो है दूसरी जो फसलें हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस पे हमें जो है वो गौर करना पड़ेगा। डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना था कि नहरी पानी जितना मिल जाए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि नुकसान को कम किया जा सके। इनका कहना था कि बीमारी की शिद्दत बढ़ने की सूरत में अनार का फल फटकर जमींदार का नुकसान कर जाता है, इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। अनार के अंदर जो एक बहुत बड़ा बिग इशू है वो इसकी स्प्लिटिंग है, अनार का फटना। तो स्पेशली जब ये गर्मी बढ़ जाती है तो उसके अंदर जब इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है उसको सही तरह से पानी नहीं मिलता तो अपना दिन और रात के दर्जा हरारत की वजह से अनार जो है वो फटना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपना जो हमारे बागबान हज़रात हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, पानी जो इसकी आबपाशी है उस पर गौर करें और इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट और बोरान इनकी स्प्रे जो है वो लाजमी करें। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से फल के साथ पौधा भी मुतासिर हो सकता है, इस हवाले से इसकी निगहदाश्त जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। खबर शामिल कर और आपको बताएं, ब्रॉयलर फीड की कीमत में एक रोज में 400 रुपये फी बैग इजाफा। 47.5 रुपये वाले बैग की कीमत 5150 रुपये तक पहुंच गई। पोल्ट्री एसोसिएशन ने कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा कर दिया। पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़ा खतरा लाहिक हो गया। एक रोज में फीड के बैग की कीमत में 400 रुपये इजाफा कर दिया गया। फीड बैग 4750 रुपये से बढ़कर 5150 रुपये का हो गया। चंद महीनों के बाद कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफे ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। जिसका था डर वही हो गया। फैसलाबाद में मुआशी सूरत हाल बेहतरी की बजाय बदतर होने लगी। माली साल से कबल बरामदातें कम वाक़या हुई। मुआशी सूरत बेहतरी की बजाय बदतर होने लगी। अदारा शुमारियात की जानिब से मई के महीना की बरामदात रिपोर्ट जारी की गई। मुल्क की बरामदात को बैक गेयर लग गया। एक्सपोर्ट ज्यादा होने की बजाय कम हो गई। मई के महीना की निस्बत गुज़श्ता महीना अप्रैल की निस्बत 4.50% कमी हुई। अप्रैल में बरामदात 5,34,514 मिलियन रुपए रही। मई के महीना में बरामदात कम होते हुए 5,10,474 मिलियन रुपए बरामदात हुई। मई रवां साल के गुज़श्ता साल मई की निस्बत बरामदात में 100% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हालात खराब हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन कम हो रही हैं। अभी वैल्यू के मुताबिक बरामदात कम हुई, जबकि मिकदार पहले से भी कम हुई। ना रिफंड मिल रहे हैं और ना ही रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि बरामदात बढ़ाएं? अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये आप नज़रसानी करें। ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं, ख़ासकर गैस और पेट्रोलियम की, इसने बहुत ज़्यादा हिट किया इंडस्ट्री को और लोकल इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। अगर इंडस्ट्री को फौरी रिलीफ ना मिला तो देर हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हल्के में होंगे बरके रफ्तार तरक्याती काम। NA106 में रोड सेक्टर के लिए 5 अरब 92 करोड़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर हाईवे ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली।
PP 108 और PP 109 में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स तलब किए जाएंगे। जंग रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 63 करोड़ रखने की तजवीज़ सामने आई। अमीनपुर रोड के लिए 23 करोड़, डिचकोट पेंसरा रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 78 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। डेप्यूटी वाला इंटरचेंज से अब्बासपुर फाटक तक सड़क की मरम्मत के लिए 1 अरब 70 करोड़, मियानी बाईपास से सुधार मंडी जंग रोड की मरम्मत के लिए 2 अरब की तजवीज़ सामने आई है। NA 106 की 27 रोड सेक्टर स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली। इंतजामिया 120 बेड इजाफे के तोसी मंसूबे का 5 साल बाद भी PC1 मंजूर न करवा सकी। माली बजट 2021 और 22 में हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 40 करोड़ रुपए का बजट भी ज़ाया हो गया है। 2017 में हुकूमत पंजाब ने DHQ अस्पताल में 120 बेड का इजाफे का मंसूबा बनाया था, जिस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए लागत आना थी, मगर 5 साल बाद भी PC1 मंजूर नहीं हो सका। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि गायनी, मेडिसिन, बच्चा और न्यूरो सर्जरी के 30 बेड का इजाफा होना है। ये इनिशियली जो स्कीम थी वो 40 करोड़ की थी, उसमें कुछ एक पुरानी एमरजेंसी की डिमोलिश होना था और 120 बेड का नया 3-4 यूनिट बनने थे 30 बेड के। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह पोस्टपोन होती रही। 2 दफ़ा इसकी साइट चेंज की गई। तो अभी जो फाइनल हमारी हुई है पिछली मीटिंग में, वो उसकी अप्रूवल हो गई है। तो हमने उसका PC1 जमा करवाया हुआ है बैठ होने के लिए चीफ इंजीनियर के पास। MS आसिफ हमीद सलीमी का मजीद कहना था कि मगर कभी जगह की तब्दीली और कभी सेक्रेटरी हेल्थ तब्दील होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हो रहा है। अब दोबारा PC1 जमा करवाया है, जिसमें HVAC सिस्टम समेत मशीनरी शामिल है। मंसूबा पर 120 करोड़ रुपए लागत आएगी। अब इसका बजट जो है उन्होंने कहा जिसमें HVAC भी डालना है, इसमें जो न्यूरो सर्जरी भी डालना है, उसके थिएटर भी डालना है, उसका सारा इक्विपमेंट भी डालना है। तो इसकी तकरीबन जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 1200 मिलियन हो गई है। मंसूबे में ताखीर के सबब अब इसकी लागत में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। यहाँ आपको अपडेट करें कि चिन्योट की सबसे बड़ी इलाज का मसाइल की आमाजगा बन गई। एक तरफ सहूलियात की कमी तो दूसरी तरफ अमले की मनमानियां जारी हैं। अस्पताल के जिस शोबे में भी जाएं, आपको मरीज दिलो ख्वार होते दिखाई देंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में मरीज परेशानी से दो चार। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों का तांता बन गया। मरीज डॉक्टर रूम समेत दीगर शोबाजात में इलाज मुआवजे को तरसने लगे। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में हर तरफ बद इंतजामी का राज है। पर्ची काउंटर पर दिलीलो ख्वार होने के बाद इलाज मुआवजे और अद्वियात के हासूल के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। मरीज शदीद गर्मी और हब्स में परेशानी से दो चार दिखाई देने लगे। शहरियों का कहना है कि कभी सीट से डॉक्टर गायब तो कभी अमला मौजूद नहीं होता। इसके बायस चंद मिनटों का काम घंटों में भी नहीं होता। इस हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन भी जो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है और इसमें डॉक्टरों की गफलत है। ठीक है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे जो अमला है उनका रवैया नहीं अच्छा है। मरीजों ने हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया कि डॉक्टर समेत दीगर अमले की तादाद को बढ़ाया जाए और इलाज मुआवजे की सहूलियत को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। हुकूमत पंजाब का पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए अहम फैसला। बैरून मुल्क सफर करने वाले हर उम्र के अफराद के लिए पोलियो कतरे जरूरी करार दे दिए। हुकूमत पंजाब का पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए अहम फैसला। बैरून मुल्क सफर करने वाले हर उम्र के अफराद के लिए पोलियो कतरे जरूरी करार दे दिए हैं। ऐसे में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से महकमा सेहत को एयरपोर्ट पर पोलियो टीमें तश्कील देने की हिदायत की गई है, जिस पर CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि एयरपोर्ट पर टीमें मौजूद हैं, मगर सिर्फ 5 साल से कम उम्र अफराद को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। मगर अब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से तमाम उम्र अफराद के लिए पोलियो कतरे जरूरी करार दिए गए हैं। हमारी ऑलरेडी जो PTP टीम्स हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर बैठी हुई हैं। वो बच्चों को वहाँ पे जो भी आ रहे थे उनको कतरे पिला रहे थे, लेकिन अब तमाम उम्र के लोगों के लिए ये एक लाजमी करार दे दिया गया है कि जिन्होंने भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है वो कम से कम 4 हफ्ते पहले पोलियो की वैक्सीन लेंगे और उसका जिस तरह कोविड का हम निम्स के ऊपर एंट्री करते थे उसी तरह उनकी एंट्री भी जो होगी वो निम्स पे होगी और उसका नादरा का जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा उनको। इसलिए बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद को 4 हफ्ते कबल पोलियो कतरे पीना होंगे। ताहम हामला खवातीन को पोलियो कतरे की बजाय पोलियो हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग करेंगे। एयरपोर्ट पे ऑलरेडी फैसिलिटी मौजूद थी, पहले बच्चों के लिए थी, लेकिन अब बड़ों के लिए भी पोलियो के कतरे भी और पोलियो का इंजेक्शन भी, दोनों की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी गई और DHO जो PS है हमारे वो इस चीज़ के फोकल पर्सन बना दिए गए। पोलियो टीमें 24 घंटे एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद।
फंड्स की कमी या वजह कुछ और? फैसलाबाद के थानों की इमारतें खस्ता हाल। साल से थाना सरगोदा रोड की बिल्डिंग तमीर और मुरम्मत की मुंतजिर है। ये है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान का पुलिस स्टेशन जो खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है। पुलिस अफसरान की जानिब से कारकर्दगी की डिमांड 100%, मगर थानों की बिल्डिंग्स की हालत जीरो हो चुकी है। थाना सरगोदा रोड की खस्ता हाल बिल्डिंग ने एहलकारों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। DSP दफ्तर और थाना सरगोदा रोड एक ही खस्ता हाल बिल्डिंग में मौजूद। दर्जनों एहलकार खौफ के साए में फराइज सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। आइंदा मानसून सीजन में थाने की बिल्डिंग को बड़ा हादसा पेश आने के खदशात मंडला रहे हैं। वॉशरूम भी खस्ता हाली की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल हैं। थाना की खस्ता हाल बिल्डिंग्स पुलिस का इमेज खराब करने में कलीदी हैसियत रखती है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आगे बढ़ो और आपको बताएं, पढ़ो पंजाब आगे बढ़ो पंजाब का ख्वाब सिर्फ नारा बनकर रह गया। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद स्कूलों में मुफ्त किताबें ना पहुंच सकें। पंजाब हुकूमत ने 1 जून को छुट्टियां की, जबकि नया तालीमी सेशन 1 अगस्त से शुरू करने की तारीख मुकर्रर है। छुट्टियों से कबल सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त किताबें फराहम की जाना थी, लेकिन छुट्टियां शुरू होने के एक हफ्ता बाद भी बच्चों को किताबें फराहम ना की जा सकी, जिसके बायस तलबा 2 माह बगैर किताबों के ही गुजारेंगे। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान कहते हैं कि स्कूलों में बुक बैंक बनाकर पुरानी किताबें इकट्ठी की जा रही हैं और कुछ नई किताबें भी हुकूमत की तरफ से मौसूल हो चुकी हैं। जैसे ही किताबें मुकम्मल होंगी बच्चों में तकसीम कर दी जाएंगी। हमने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि तमाम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो हैं अपने क्लास इंचार्ज की मामले से अपने स्कूल का जो बुक बैंक है उसके ज़रिए बच्चों को पुरानी बुक्स जो हैं वो दे दें जब तक नई नहीं आती। लेकिन मई के अंदर ही हमारे पास कुछ स्टॉक आ गया था। उसमें हमने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को ये कह दिया था इस नोटिफिकेशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट का वादा कि छुट्टियां भी इनको दी जाएं और जो बुक्स वगैरह हैं वो भी इनको डिलीवर कर दी जाए। तालीमी हलकों और वालदैन की जानिब से बच्चों को किताबें और छुट्टियों का काम ना दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं तरसीलाते ज़र पर मुबैना तौर पर हकाइक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद जाने का इंकशाफ। FBR की बैरून मुल्क से आने वालों से ज़ायद टैक्स वसूलियाँ शुरू कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलाते ज़र पर मुबैना तौर पर हकाइक के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद किए जाने लगे। कानून के मुताबिक सालाना 50 लाख रुपए मुल्क भिजवाने पर टैक्स आयद नहीं होता। मुतासरा टैक्स गुजारों के वकील और माहिर टैक्स उमूर नईम कासिम गिल का कहना है बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलाते ज़र के लिए 4 शराइत रखी गई हैं। रकम का बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल्स के जरिए पाकिस्तान आना जरूरी है। कानून के मुताबिक 1 साल के दौरान 50 लाख रुपए तक फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स आयद नहीं होता। ताहम FBR कवानीन के बरक्स शहरियों को टैक्स और जुर्माने आयद कर रहा है। फॉरेन रेमिटेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111 के अंदर 111(4) के अंदर एग्जेम्प्ट है और वो एग्जेम्पशन इसलिए दी गई है ताकि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो मैं अब ये जो एग्जेम्पशन के हवाले से जो 4 पॉइंट हैं वो पूरे करने ज़रूरी हैं। अगर कोई रेमिटेंस बाहर से भेजता है तो वो 4 पॉइंट पूरे करता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से इस मामले का नोटिस लेकर गैर कानूनी अमल को बंद करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद पुलिस एहलकारों के जराए में बराह रास्त मुलविस होने का सिलसिला जारी है। एहलकार खालिद जावेद मोटरसाइकिल चोर निकला।